You are Yes. audible, very much Yeah, audible. good evening, everyone. Myself, Dr. Sanjay Tehliani. I am associated with the mathematics from the past. Means from the schooling also, I have taken huge interest of mathematics. As far as the flavor of nowadays, I am finding that students they require some extra efforts to make mathematics meaningful. Means they want something that meaningful should come to them. For example, a student comes to the school, he studies maths, he does everything. But beyond that, he wants to know what are the applications of the mathematics, why these things are being used. For example, suppose we take the class, we tell them everything. Now we teach them student differentiation and integration. Now we keep on telling the formulas, we keep on telling the concepts, we keep on telling the tricks. But in actual, what they actually required we sometimes we tell, sometimes we forget it. Like differentiation has got very good application. When a car moves on a road, it's a continuity as well as differentiation. When the car takes the turn, it's again a differentiation. A bucket of water fills it out. When it moves out, it's again a differentiation. So I think we should now take up this way ki how to tell the students what are the applications of mathematics. If we talk of the computer technology is being widely used nowadays. The reason being out of the computer, students can have various career options also. They can apply the computers in many other fields related to mathematics like architecture, astronomy, and many others. So like this, mathematics is there everywhere and students can be told like this key mathematics is very useful for them in their future also. So that means mathematics as such is not a means dull subject. It can be understood by everyone provided we provide the students wide applications for it. So uh, any other Sanjay, when you were wants to giving say the anything? example of differentiation, so I Yes, was ma'am. recollecting my classes, or I was just thinking of the application like we are talking about differentiation and integration. Let us think about when we are talking about even mensuration. When Yes, the ma'am. child is studying, for example, the child studies so many things in that, different Yes, shapes ma'am. they study, like, but Mhm. they should feel that if they have to, suppose they are going to, for going to order something, Yes, because ma'am. nowadays they are eating out also, so they Yes, should ma'am. feel that if the restaurant, you can feel that if the some restaurant wala is coming and saying that, oh, I am providing you this scheme or that scheme, I am providing you the, like suppose they are ordering some pizza, Yes, ma'am. so in place of one pizza, Yes, ma'am. if Radius is giving something and they're Yes, saying that ma'am. we are Yes, giving you yes, some scheme, yes. so they should understand whether they are giving that scheme, whether it is profitable or not, because that time they can calculate, if they are studying, they can find out how much area there is. Yes, yes, ma'am. Mainly, they are Exactly. going to some field. See, Mhm. if they will feel that, they will enjoy, then they will apply. If Yes, they ma'am. are talking about the different shapes, that they should know if there is a field, in that field how to find out the total area. It may be a simple rectangular square, but there may be some Yes, ma'am. different shapes are coming in that. So if the Yes, child will study, we should have the maths of that particular type. yes, ma'am. Yes, ma'am. Just only cramming and applying that and substituting the value, actually that is not Yes, the maths. yes, ma'am. Ma'am, like a means one student asked me, "Ki, sir, we studied Pythagoras theorem. What's its use?" Yes, yes, Then yes. I told, first its construction. But Mhm. still, to make my answer more proper, more logical, I said navigation of ships. Navigation of That's ships correct. require Pythagoras theorem. So these are the applications where we can really tell the students, ki, yes, mathematics has got many wide applications. So what I'm feeling like, see, when you're talking, just we are talking about the parallel lines. So Yes, ma'am. if the child has observed that, and Yes, suppose ma'am. उसके घर में आके electrician is fitting a tube light even, so that person can very easily can say this is straight hai or it is not straight, because they can compare from the edges also. And if these things are coming in their mind also, they can feel in the Yes, ma'am.
daily life also, only then they will enjoy the subject. This is the first aspect. Yes, And secondly, we will think for the career and all those things. But when the child is studying, they should relish that thing also. आज का बच्चा पहले ये जानना चाहता है कि why it is important. तो वो flavor हम ही को देना है. We have to teach in that way. And ma'am, moreover, we can just introduce the concept of Vedic mathematics in the school. Yes, also, definitely. for As well as faster the mental maths calculations, also, sir. Multimedia lectures for the students' mind to just take up the mathematics and multimedia and computers are all the online required. So these are the some of the points where can student really take interest. Ki yes, mathematics is a good subject. It's not. We can get knowledge from that, and it is widely used outside also and in daily life too. Yes, of course, sure. नमस्ते संजय जी. Oh, namaste Dhamrika sir, कैसे हैं? नमस्ते. गुड. Welcome sir, welcome to the meeting. नमस्ते. मैं ये कह रहा था कि आज हम सबको एक काम और भी करना है संजय जी सर, कि हमें ज्योतिषी बन जाना है. ज्योतिषी और ये सोचना है. ज्योतिषी क्या करता है, आपके हाथ को देख के बताता है आपका फ्यूचर कैसा रहेगा. हाँ जी, यही काम करता है ना वो, कि आपके ग्रह कैसे हैं और ग्रह देख के वो आपको बताता है कि थोड़ा कष्ट आएगा मगर आपको ये राहु भारी है मगर चल जाएगा और आपका फ्यूचर ये ऐसा हो जाएगा. तो हमें भी ये काम करना है कि ये सोचना है कि 2030 में किस तरह का मैथमेटिक्स रेलेवेंट होगा. क्या मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाए जो हमारे आज के किताबों को या हमारे बच्चों को रेलेवेंट बना सके, 2025 में 2030 में रेलेवेंट बना सके. ये बहुत जरूरी. तो मेरी सबसे ही रिक्वेस्ट है जितने भी पार्टिसिपेंट हैं कि वो अपने विजन से थोड़ा सोच के बताएं कि किस तरह की क्या क्या चीजें. और मैथमेटिक्स में पढ़ाने की बात तो ठीक कह रहे हैं आप कि रेलेवेंट होना चाहिए, मजा आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, मगर क्या और चीज डाली जाए मैथमेटिक्स में? सर, जैसे मैं कंप्यूटर रिलेटेड टॉपिक्स भी ऐड कर सकते हैं ताकि हम बच्चों को बता सके कि मैथमेटिक्स और कंप्यूटर के आगे क्या यूजेस हैं. क्या वही हमें पिन पॉइंट करना है कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्या. हाँ जी सर, सोचना है थोड़ा सा. हाँ जी, मिलके सोचना है सबने कि कंप्यूटर से रिलेटेड क्या हम डालें जो कि मैथमेटिक्स में भी इस्तेमाल हो और बच्चों को उस दिशा में हेल्प करे. हाँ जी सर, जैसे जियोजेब्रा हो गया, डेस्मोस हो गया. अब ये दो ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसको हम वाइडली बच्चों को बोलते हैं कि प्रैक्टिस इट, मेक द डायग्राम्स, मेक द ग्राफ्स, टेक अप द कैलकुलेशंस. तो सर इन दो अगर हम सॉफ्टवेयर को सिलेबस में इंक्लूड करें तो उसमें बच्चे को अच्छी खासी हेल्प मिल सकती है उसको सोचने की कि भाई जियोजेब्रा और डेस्मोस से कैसे हम फंक्शन प्लॉट करें, कैसे कैलकुलेशंस करें एंड रेस्ट. मगर मुश्किल क्या है संजय जी, आप एक सॉफ्टवेयर बने बनाए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल बता रहे हैं. हाँ जी. या जैसे आप टीचर कोई रूल बताता है ना कि 1 को 10 से गुना करो तो 0 लगा दो. हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह जियोजेब्रा भी है. हाँ जी, हाँ उसमें जी, ऑलरेडी बना हुआ है, वो उसको सिर्फ हिला दो तो पता लग जाता है. हाँ मैं तो चाहता हूं कि हमारे बच्चों में जियोजेब्रा जैसा सॉफ्टवेयर बनाने की कैपेबिलिटी हो जाए. हाँ जी. वो कैपेबिलिटी कैसे आएगी, क्या मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाए कि बच्चे इन्वेंटर बन सकें, बच्चे इनोवेटर बन सकें, बच्चे कुछ क्रिएटिवली नया सोच सकें. हमें ये सोचना है कि मैथमेटिक्स में ऐसा क्या और डाला जाए. मैं संजय जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बात बताएं, कुछ बोलें. सर, मेरा ज्यादातर जो सामना होता है वो मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ ज्यादा करता हूं. तो मेरे लिए तो ये सारी बातें अभी सोच पाना, उन बच्चों के लिए उन वहां तक पहुंच पाना एक बहुत बड़ा ड्रीम है. तो ये बात कहूंगा कि जो हमारे अभी निपुण भारत की जो बात NEP 2020 में की गई है, जो अभी ये कहती है कि कक्षा 3 तक के बच्चों 2026-27 तक बेसिक
न्यूमरेसी के अंदर हमको जो उनके स्किल्स हैं उनको हमको डेवलप करने की बात अभी अगर सरकार सोच रही है, तो उनको कैसे हम विकसित करें, उनके लिए हम क्या करें, वो चीजें शायद लगता है कि वहां से शुरुआत अगर की जाती है काम करने की, उसके लिए हमको क्या रिसोर्सेज देने की जरूरत है, उनके लिए क्या टीएलएम्स बच्चों को देने की जरूरत है, उनके लिए टीचर्स को कैसे कैपेबल बनाना है, कैसे उनको उस पेडागोजी को यूज करने के लिए उनको क्लासरूम में उन टीएलएम को यूज करना, उन कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें अगर मुझे लगता है इसके ऊपर फोकस किया जाए तो शायद आज भी 70% बच्चे हमारे जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनको शायद बहुत एक अच्छा फायदा होगा। नहीं सर, मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज हम जो शुरू करते हैं ना, उसको 7-8 साल लग जाते हैं ग्रास रूट तक एक्सेप्टेंस मिलने में। 2006 में जब हमने प्राइमरी की किताबें लिखी तो डाटा हैंडलिंग एक टॉपिक था जिसको हमने डाला। आपने देखा होगा एनसीईआरटी की किताबों में डाटा हैंडलिंग मेजर रूप में आया, और मैप रीडिंग, 2 चीजें है ना, मैप बनाना और मैप रीडिंग। अब वो ये देख के डाला गया था कि इन स्किल्स की जरूरत हमें आने वाले समय में होगी, इसीलिए हमने उनको करिकुलम में किताबों में डाला था। और उस समय मुझे याद है बहुत विरोध हुआ, बहुत लोगों ने कहा ये क्यों डाल दिया, क्या किया, क्या करेंगे बच्चे। मगर धीरे धीरे समय ने, कोविड ने हमें बता दिया कि डाटा हैंडलिंग तो बहुत जरूरी स्किल है। हाँ जी। मतलब अब तो डाटा देख के ही आपको पता लग जाता कोविड का क्या हाल है, और बच्चे भी इवन अखबार पढ़ के बता देते हैं कि भैया ये तो नीचे को जा रहा है जी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमें क्या और गणित में करना चाहिए। आपके कंसर्न बिल्कुल ठीक है गुलाटी, कि ये सब तो हमें करना ही पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए रिसोर्सेज। और मेरा मानना ये, अब टीएलएम का जमाना खत्म हो गया, अब एलएम का जमाना है। सिर्फ टीचिंग कुछ नहीं, सिर्फ लर्निंग की बात करेंगे। फोकस हमारा लर्निंग पे ही है, लर्निंग मटेरियल ही बनाने। तो मेरा कहना ये, इसलिए मैं कह रहा हूं कि जरा सोच के देखें कि क्या और टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो हमारे बच्चों को 2030 में एम्प्लॉयबल बना सकें, उनकी स्किल्स ऐसी हों कि वो 2030 में भी काम कर सके। सर वीडियोस, एनिमेशंस और मूवीज, उस पे भी अगर हम काम करें, उससे बहुत ज्यादा बच्चों को मींस एक प्लेटफॉर्म मिल सकता है। जी मीनाक्षी जी बोली। सर मुझे लगता है कि हम बच्चों को एम्फेसाइज करें, जैसे रीजनिंग और पैटर्न्स होते हैं ना सर, उसको वो अंडरस्टैंड करें, बिकॉज और वो किसी भी प्रॉब्लम को हम ब्रेक कैसे करते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, जनरली जो टीचिंग का ड्यू टू सब्जेक्ट मतलब कंप्लीशन ऑफ सब्जेक्ट की तरफ दौड़ने की वजह से, फिनिश करने की वजह से एक सोल्यूशन बेस्ड हमने देना शुरू कर दिया है। हम बच्चे के सामने समस्या रखें और वो उसका निदान बता सके, वो पहले उस समस्या को समझ सके कि स्टेप्स कैसे इसको ब्रेक करना है। क्योंकि आप जैसे बात कर रहे हैं आने वाले 2030 तक, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कोडिंग। अब कोडिंग जब बच्चा करेगा तो उसके लिए उसको पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एनालाइज करना, ब्रेक करना, तो वो सब स्किल्स डेवलप करने के लिए हम छोटी क्लासेस से यदि रीजनिंग और ये थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे, और पैटर्न्स के बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जो कि हमारे पहले बहुत सारे अब हमारे अप्लाइड मैथ्स में भी डाल दिए गए हैं, कुछ चीजें इस तरीके की धीरे धीरे डाली जाएंगी, उस तरीके का फोकस किया जाए छोटी क्लासेस के बच्चों पे भी, तो उनको ज्यादा समझ आएगा। और तो सर जैसे मैथमेटिकल टेबल्स होती हैं और बोरोइंग एंड सब्ट्रैक्शन है, तो इसमें तो अब तो मैंने भी कई दफा देखे हैं, नए नए वीडियोस आ रहे हैं, नए नए म्यूजिक चैनल्स आ रहे हैं जो कि स्पेशली दिखाते हैं कि मैथमेटिकल टेबल्स और बोरोइंग द मीन सब्ट्रैक्शन कैसे यूजफुल रहता है, उन कॉन्सेप्ट्स को लेकर उस म्यूजिक वीडियो चैनल को समझकर। तो सर मुश्किल क्या है संजय जी कि मुझे टेबल रटवाने हैं क्या बच्चों को,
या बच्चों में वो स्किल डेवलप करनी है कि वो टेबल को खुद डेवलप ऑब्वियसली स्किल ही डेवलप होगी। हाँ जी, डेवलप करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ जी, हाँ, तो वो जैसे वो कहते हैं ना कि मछली तालाब में डाल के दे दो किसी को, वो इम्पोर्टेंट है, या मछली पकड़ने की स्किल ज्यादा इम्पोर्टेंट? पकड़ने की ही जरूरी है सर। वही चीज मैं कह रही हूँ सर, एक ये चीज हमें डेवलप करनी चाहिए। जैसे हम ये कहते हैं इसका आंसर ये सही है, जरूरी नहीं है हाँ। बच्चा अपनी तरफ से उस आंसर तक पहुंचे। तो नहीं, हम कई आंसर क्यों ना, हम हो सकता है वो दूसरा ऐसे आंसर- क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन क्यों ना बनाएं जिसके कई आंसर हो, जी जी वही चीज और मैं कह रही हूँ। अलग तरीके से करें तो दूसरा आंसर आए, दूसरे तरीके से करें तो दूसरा आंसर आए, ऐसे भी तो हो सकता है ना। नहीं, अब वही सर चीज़ पे जैसे फोकस किया जाए, जैसे कि हम बच्चे को ये क्यों सिखाएं, जैसे हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं सर, तो हम उसको बताएं, ये उसके दिमाग में बता दें कि मल्टीप्लिकेशन इज नथिंग बट द रिपीटेड एडिशन। तो जब बार बार बचेगा तो वो उस तरफ जाएगा, उस तरीके के क्वेश्चंस। नहीं, मगर फिर मैडम ऐसे है कि इसी रूल ने बच्चों का बड़ा नुकसान किया जी। जब हम बच्चे को बार बार कहते हैं रिपीटेड एडिशन उसके दिमाग में बैठ जाती है, और जब हम कहते हैं कि 1/2 गुणा 1/3, तो वहां रिपीटेड एडिशन तो होता नहीं, या 1/2 गुणा 1/2 को 2 बार जमा कर लो तो क्या, या गुणा कर लो। नहीं, ऐसे कई रूल्स हैं सर, ऐसे कई रूल्स हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई ये रूल जो है ना ये फेल हो जाता है। ये कई रूल्स होते हैं सर, जैसे वो बोलते हैं कि दो संख्याओं का गुणा करने पर हमेशा बड़ी संख्या मिलती है, ये बोला जाता है। हाँ, डेसिमल में जब काम करते हैं तो संख्या छोटी हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ, ये जो जनरलाइजेशन है, बिल्कुल वो तो मुझे विजुलाइज करेंगे ना सर, तभी तो आएगा। तो मुझे लगता है कि बच्चों को डिस्कवर खुद करने दें हम। जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी सर, उस रिजल्ट तक पहुंचने दें, ऐसा क्यों हो रहा है। जो मैडम जो कह रही हैं सर, मैडम जो कह रही हैं वो मेरे ख्याल से एनईपी में उसको कवर किया गया है कंप्यूटेशनल थिंकिंग के नाम पर। हाँ जी, हाँ जी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग की जो बात की गई है वो उसी डायरेक्शन में की गई है। और जो ये कहा गया है कि छोटी कक्षाओं से कुछ कोडिंग के लिए करवाना, अब जैसे संजय सर कह रहे थे जियोजेब्रा की बात कर रहे थे सर, तो मुझे लगता है कि उसका काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन को प्लॉट करने तक सीमित नहीं है सर, उसमें नहीं सर कैलकुलेशंस वगैरह भी बहुत होती हैं इसमें। हाँ जी सर, उसमें कोडिंग होती है, उसमें पूरी हाँ जी, हम बता सकते हैं, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों के लिए हम हर चीज हाँ जी बता सकते हैं कि हाँ कैसे जी, हाँ जी, उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। हाँ जी, हाँ जी, पूरा काम जो है हाँ जी, फॉर्चुनेटली वो मैं इसके बारे में ये कह सकता हूँ, प्रवीण चौरसिया जी के साथ मिलकर मैंने मैथमेटिक्स का एक किट, ज्योमेट्री किट डेवलप हम लोगों ने किया था आज से 6-7 साल पहले। अब वो कैसे यूज हो रहा है, कहाँ यूज हो रहा है, वो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उसमें बहुत ज्यादा पेडागोजिकल चीजें जो हैं उसकी यूज हो पाती हैं, सिवाय सिंपली कोई फॉर्मूला को बना करके फॉर्मूले का आंसर निकालना वो इंपॉर्टेंट नहीं है। वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे हम करना है, कैसे हमको विजुअलाइज करना है किसी प्रॉब्लम को, ये सारी चीजें जो है हम लोग इस टाइप के सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। लेकिन जो डॉक्टर धर्म कह रहे हैं वो एक चैलेंज होगा ये हम लोगों के सामने में, सारी चीजें अगर इंट्रोड्यूस होती हैं तो टीचर्स के माइंडसेट को उस तरीके से सेट करना कि बच्चों के सामने वैसी चीजें रखे, एक फॉर्मूले को ट्रेस करने के लिए एक टूल के रूप में ना रखे, तो इसका उसमें प्रोफिशिएंट होना कि उसको यूज कैसे करना है एज ए पेडागोजिकल टूल, ये टीचर को जानना बहुत जरूरी होगा। अब धर्म संजय जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। संजय जी, मैं कह सकता हूँ? हाँ, प्लीज सर प्लीज। हाँ संजय जी, अब जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं 2 2s are 4, अब ये स्टेटमेंट 2 2s are 4 गलत स्टेटमेंट है, ये होता है 2 2s are 4। अगर हम ये सब बच्चों को अभी से बताएं वो ध्यान लेंगे। अगर हम बच्चे को अभी से ये बताएं 2 2s are 4, तो वो जार लेकर ही चलता रहेगा। तो ये थोड़े टिप्स हैं, हम बच्चों के नॉलेज को और एनरिच कर सकते हैं। 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 3s are 12, या तो हम सीधा ही पहुंच देते हैं 4 3s are 12, 3 4s are 12। तो अगर हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही ये सब बताएंगे तो वो डेफिनेटली उस चीज
करेक्ट चीज को सोचेगा और उसको इम्प्लीमेंट करेगा। दूसरी बात, टेबल्स में बच्चा ये सोचता है कि क्या मैं टेबल्स रटूं, जब तक कि हम उसको ढंग से ये ना बताएं कि टेबल्स कैसे होती हैं। 4 3s are 12, 4 4s are 16, अब 12 में 4 ऐड करो 16। तो इस हिसाब से अगर हम बच्चों को टेबल्स की बात सिखाएं तो वो बहुत जल्दी इस चीज को सीख सकेंगे। और मुश्किल क्या है, कुछ आप बोलना मुश्किल चाहेंगे क्या इसमें? के टेबल्स में हम 10 पे रुक जाते हैं, क्यों? हाँ जी, 10 पे क्यों रुक जाते हैं? हाँ जी, वो इसी वजह से वो आगे इनको कैलकुलेशंस टफ लगती हैं या कुछ ऐसा। हम क्यों नहीं बच्चों को एक्सप्लोर करने देते 2 की टेबल, कि वो 2 की टेबल मर्जी इतनी लंबी बना लें। मैंने ये बच्चों के साथ काम किया और मैंने एक क्लास में बच्चों को कहा आज हम ना 2 का सांप बनाएंगे और देखते हैं कौन सबसे लंबा सांप बनाता है। मगर 2 की, और बच्चों ने बनाया। कुछ बच्चों ने आके कहा जी हमारा तो कागज ही खत्म हो गया, कॉपी का पन्ना खत्म हो गया और सांप अभी आगे चल रहा है, वो तो मेज पे चला गया, फर्श पे चला गया। तो मेरा कहने का मतलब, अब जो बच्चे ये सब कर पा रहे थे उन्हें उसके बाद 2 की टेबल तो कभी करवाने की जरूरत है ही नहीं। अगर किसी बच्चे ने 2 की टेबल 50 तक बना ली, 60 तक बना ली, 70 तक बना ली, उसके बाद उसे 2 की टेबल का क्या करना, कब कुछ भी नहीं। ही हैज मास्टर्ड इट, उसने उसको मास्टर कर लिया। तो मुझे लगता है कि कहीं पेडागोजी में तो प्रॉब्लम है ही है, मगर हम बच्चे को जो रूल चेंज होता है, जब नंबर्स चेंज होते हैं, फ्रैक्शन चेंज होता है, डेसिमल चेंज होता है, तो वो बच्चे को डिस्कवर नहीं करने देते, हम उसको बता देते हैं। और एक हमें मुझे प्रॉब्लम और आ रही है कि जो हम 9th-10th में असेसमेंट करते हैं जाके, उसकी एक विकट प्रॉब्लम है कि हम 5 पॉइंट स्केल लगाते हैं कि इस बच्चे को 4 नंबर दे दो क्रिएटिविटी के। अब उसका क्या मतलब है? 4 नंबर का क्रिएटिविटी कौन होता है? मुझे बताइए, मुझे आप तो करते हैं ना ये सीबीएसई के लिए। 4 नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं, 2 नंबर देते हैं, 1 नंबर देते हैं, तो 3 नंबर का क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है? AIL से तो परेशान है सर बच्चे, क्या AIL डाल दिए हैं ये लोग। 4 नंबर का क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है, या 5 नंबर का क्रिएटिव बच्चा कौन सा होता है? मुझे लगता है कि हमें अपनी असेसमेंट सिस्टम को भी ओवरऑल कहीं करना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा जिस तरह से हम कर रहे हैं बच्चे की असेसमेंट, उससे कुछ नहीं पता लगता। 3 नंबर आ गए बच्चे के क्रिएटिविटी में, क्या पता लगा आपको? या मैथमेटिक्स में उसके 70 नंबर आ गए। आप विश्वास मानेंगे, हमने क्या किया, एक बार सीबीएसई के साइंस के रिजल्ट्स को दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मिलके एनालाइज किया, और मजे की बात ये पता लगी कि जो बच्चे एक ही सब्जेक्ट लिया हमने फिजिक्स, और देखा कि ज्यादातर बच्चे अच्छा नंबर इसलिए आ रहे हैं कि प्रैक्टिकल में 30 में से 28, प्रैक्टिकल में 25 हैं, और उन्हीं बच्चों के प्रैक्टिकल थ्योरी में बहुत कम नंबर है। अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी बच्चे के प्रैक्टिकल में 28 नंबर हैं और थ्योरी उसे नहीं आती? तो कहीं तो झोल है ना सर, कहीं तो झोल है कि स्कूल वालों ने नंबर ज्यादा दिए हैं बच्चों को, कि ये कैसे हो सकता है कि उसको प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छा आता है। मगर तो असेसमेंट सिस्टम को मुझे लगता है कहीं एक अलग दिशा देने की भी मुझे सर, अब एक नया आ रहा है, इक्वेशियो मैथ स्पेस, जहां छोटे बच्चों को ही हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में आकर उनको कैलकुलेशंस वगैरह सिखाकर वही आंसर पता करके बच्चों की क्रिएटिविटी वहीं से जान सकते हैं। तो मैं यही एम्फेसिस कर रहा था कि एनईपी में अगर हमारे पास एक क्लास हो कि जैसे विजुअल प्लेटफॉर्म हो गया या विजुअल वे हो गया उस चीज को करने की, तो बच्चे छोटी एज में बहुत सीख पाएंगे इस चीज से। विजुअल क्लासेस तो खैर जरूरी है, बट साथ साथ अगर उनका विजुअल का एक
क्लास हो, एक टॉपिक हो, तो बच्चा बहुत जल्दी सीखेगा और उसको एंजॉय भी करेगा। अब सर जैसे मैथमेटिकल गेम्स होती हैं, मैथमेटिकल गेम्स में जैसे एक मैजिक रोबोट गेम होती है, आप रोबोट को क्वेश्चन की तरफ रखो और दूसरे साइड पे रखो, वो उसका आंसर बता देगा। तो ऐसे बहुत से टिप्स हैं, पॉइंट्स हैं जहां बच्चे मैथमेटिक्स सीकर उसको एंजॉय कर सकते हैं। सर कुछ बोलेंगे आप धर्मप्रकाश सर? नहीं, बाकी लोग बोले ना, मैं तो काफी देर से सर बोल रहा हूं। मैं एक चीज इसमें कहना चाहूंगा सर कि जब एनसीएफ 2005 बना था, उसके जो पोजीशन पेपर में एक जगह पर कुछ बातें लिखी गई थी कि बच्चों को कुछ मैथमेटिकल प्रोसेसेस होती हैं जिसके ऊपर में उनके साथ काम करने की जरूरत है, और कुछ प्रोसेसेस को उन्होंने हाईलाइट भी किया था, लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग। चलिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एक मेजर पार्ट है ही, इसके अलावा रीजनिंग एंड प्रूफ, कम्युनिकेशन, कनेक्शन, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजों के ऊपर में ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और हम लोग बेसिकली जो भी कुछ हो रहा है गणित में, प्रॉब्लम सॉल्विंग के नाम पर जो प्रॉब्लम सॉल्व होते रहते हैं कक्षा में, जो गणित आंसर निकालने की प्रोसेस है वो चल रही है। लेकिन आज रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करते हैं, जैसे अब कोई भी एक a+b का होल स्क्वायर ही है सर, जब क्लास 7th 8th में बच्चा पढ़ता है, उसको एक अलजेब्रा के फॉर्मूले के रूप में वो रटता है, उसको ये नहीं समझ पाता कि उसका कोई ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। या कोई नंबर का क्यूब अगर वो कोई देखता है, 3 क्यूब जो है उसके लिए 27 है, लेकिन वो ये विजुअलाइज कर पाता कि वो क्यूब को भी एक रिप्रेजेंट करता है जो कि एक सॉलिड है हमारा। हाँ जी। तो आपस का जो एक कनेक्शन है, इनको प्रमोट करने के लिए ये जो प्रोसेसेस जो हैं, मैथमेटिकल प्रोसेसेस जो हैं, इनको किस तरीके से हम अपने करिकुलम में इनबिल्ट करें, इंटीग्रेट करें शुरुआत से। देखिए, रिप्रेजेंटेशन जो है ये बहुत हमारे टेक्नोलॉजी से भी जुड़ता है। बहुत सारे चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सर भी कह रहे थे अभी, मल्टीमीडिया का उपयोग हो सकता है, जैसे जियोजेब्रा सॉफ्टवेयर है उसका यूज हो सकता है। मैथमेटिकल जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी क्लास का, जो शायद हमारी जो एनसीईआरटी की जो किताबें जहां भी उपयोग होती होंगी, एनसीईआरटी की बुक्स क्लास 1 to 5 की जो बुक्स हैं वो जहां भी यूज होती होंगी वहां कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता होगा, लेकिन जहां पर नहीं होती है वहां पर सिंपली जो मैथमेटिक्स जो है वो फॉर्मूला बेस्ड काम होता है वहां पर। हाँ, अब सर जैसे हम मैथमेटिक्स के वीडियोस जो हैं हम यूज करते हैं, मतलब अगर टेक्स्ट के साथ साथ अगर हम बच्चों को वीडियोस भी दिखाएं अपने बने हुए यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उससे बच्चों को बहुत मतलब और ज्यादा उसको इंटरेस्ट, उसका माइंड और ज्यादा मैथ्स की तरफ आ सकता है मेरे हिसाब से। मीनाक्षी मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज? और मैं जस्ट थोड़ा सा, धर्मपाल सर ने जो अभी कहा था असेसमेंट की बात करी थी, तो उससे मेरे दिमाग में एक चीज मतलब पॉइंट आ रहा था कि देखिए, जब हम असेसमेंट करते हैं सर, आपने कहा जैसे मैथ्स में 70% या 70 मार्क्स हैं, तो हमने उसका ओवरऑल बता दिया। अब सपोज करिए उसमें 5 टॉपिक्स हैं या 5 चैप्टर्स कहिए या 5 यूनिट्स हैं, तो हम कुछ इस तरीके से असेसमेंट कर सकते हैं कि बच्चे की कौन सी स्किल, कौन सा पर्टिकुलर चीज अभी वीक चल रही है और उसको चांस दिया जाए टू इम्प्रूव। जैसे कोई बच्चा हो सकता है अलजेब्रा बहुत अच्छा कर रहा है पर ज्योमेट्री बेटर नहीं कर रहा, तो उसकी वीकनेस ज्योमेट्री है, तो हम क्यों नहीं उसको एक टाइम दिया जाए इस तरीके का कि वो उसको इम्प्रूव कर ले। नहीं, मैं बल्कि ज्योमेट्री, आपकी बात को मैं आगे ले जाता हूँ थोड़ा सा, कि ज्योमेट्री और अलजेब्रे की जगह हम कहें कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, जी रूल मेकिंग स्किल, जी ये वो पैटर्न देख के एक रूल बना सके, जी, ये स्किल कितनी है उसमें, हाँ उसकी स्किल, उस पे हम उसको लॉजिकल स्किल कितनी है, जी, क्रिटिकल थिंकिंग कितनी है, और उसके अंदर हम ये कह सकें कि बच्चा अभी क्रिटिकल थिंकिंग थोड़ी थोड़ी तो आई है मगर और आने की जरूरत है, इट ही नीड्स टू इम्प्रूव। पेपर का पैटर्न इस तरीके से हो, असेसमेंट पैटर्न इस तरीके से कि उस पे काम किया जाए। पर उसके लिए जो जैसे आप कह रही हैं मैडम, पैटर्न की जहां तक बात है, उसमें हम लोग को लगता है कि जो 2017 में एनसीईआरटी ने जो लर्निंग आउटकम्स बनाए हैं, जो आउटकम्स रोल आउट किए हुए हैं, उनको शायद ध्यान में रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। उनको मैप करते हुए शायद हम लोगों को ये जो सर की बात भी कह रहे हैं जो असेसमेंट के ऊपर में, उनको शायद मैप करते हुए हमें क्वेश्चन पेपर्स को डिजाइन करना होगा, तब जाकर के हम लोग ये जो इस प्रकार से जैसे
इसमें हम लोग करते हैं, नैस वगैरह में होता है, नैस के जो रिजल्ट्स आते हैं जिसमें हम लोग पिन पॉइंटेडली कहते हैं कि बच्चा जो है इस स्किल में, उसको घटाने की स्किल जो है वो कमजोर है, या उसके पढ़ने की स्किल जो है वो इतनी है, तो शायद हम लोग उस तरीके की बात कर पाए। हाँ, बच्चे को जब ये पता होगा मेरी ये स्किल कमजोर है तो उसके ऊपर काम किया जाएगा तो इम्प्रूवमेंट ओवरऑल आएगा। मीनाक्षी मैम, मैं कुछ कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। मैडम, जैसे हम बच्चों को क्लास में असाइनमेंट देते हैं, अब अगर हम 10 क्वेश्चन असाइनमेंट में देते हैं तो हमें बच्चे को टाइम देना चाहिए, वो किस तरह से सोच रहा है, वो क्या लिख रहा है, वो क्या चाह रहा है, उसकी गलतियों को हम एक मतलब टूल बनाकर हम बहुत आगे उसको बता सकते हैं। असाइनमेंट्स देते हैं तो बच्चा एकदम समझ जाता है कि भाई हमने इसको कैसे करना है और किस हिसाब से इसको इम्प्लीमेंट करके वो खुद भी समझ जाता है कि मैंने क्या गलती करी और मैं इसमें इम्प्रूवमेंट ला सकता हूँ। और सर, जहां तक क्वेश्चन पेपर की बात है, क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज भी हमें प्रॉपर रखनी चाहिए। कभी कभी हम क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज ही ऐसे रखते हैं कि बच्चा खुद ही सोच में पड़ जाता है। अब जैसे मैम एक आसान सी इक्वेशन थी 11th की, साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसमें था कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। 2 इक्वेशंस दी हुई थी, साथ में कंस्ट्रेंट्स दिए हुए थे, x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बच्चे ने क्या करा, x + y लेस देन और इक्वल टू 5, 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 13। इसके 4 वर्टिसेस आते हैं, तो बच्चे ने x + y लेस देन और इक्वल टू 5 अलग बनाया ग्राफ, 2x + 3y इक्वल टू 13 का अलग ग्राफ बनाया कि सर ये आंसर है। मैंने कहा तुमने ये आंसर कैसे सीखा, कैसे समझा? कहा सर मुझे लगा कि मेरे को अलग अलग ग्राफ बनाने हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, ये सब चीजें हमें बच्चों को बताई जाएं तो वो सब करेक्टली इसको सोच सकते हैं। रादर वो तो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में सोचते हैं। धर्म प्रकाश सर, आप कुछ बताना चाहेंगे, बच्चे ने ऐसा क्यों सोचा? संजय जी। थोड़ा फिर से एक बार बताएंगे सर, शुरुआत वाली। सर, जैसे मेरे पास क्वेश्चन था, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। एक था x + y लेस देन और इक्वल टू 5 और एक था 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 12, x एंड y आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बच्चे ने x + y इक्वल टू 5 का ग्राफ अलग बनाया कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, 2x + 3y लेस देन और इक्वल टू 13 का ग्राफ अलग बनाया, जबकि लिखा हुआ था सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। उसने वो नहीं समझा, उसने उस ग्राफ को अलग बनाया, उस ग्राफ को अलग बनाया। एक तो बहुत सिंपल सा जो आप कह रहे हैं सर कि वो क्वेश्चन को ही नहीं समझ पाया पहली बार। हाँ जी, हाँ जी। सोल्यूशन निकालने का मतलब क्या है वो शायद नहीं जान पा रहा था। उसने देखा कि भाई ग्राफिकली, तो उसने उसके ग्राफ प्लॉट कर दिए, ग्राफ बना दिए। हाँ जी, सीधी सी बात है। मतलब ये जो देखिए, यही चीज है, ये जो हाँ जी कम्युनिकेशन वाली जो बात मैं कह रहा था सर अभी, कि जो कम्युनिकेशन जो हमारा जो एक प्रोसेस है, बच्चों को गणित की भाषा को समझना, बस बिल्कुल सर, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि इसमें कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमारे कॉमन वर्ड से मिलते जुलते हैं, या कॉमन वर्ड से बिल्कुल मिलते जुलते नहीं होते हैं। हाँ जी। तो वो जो भाषा को जब बच्चे नहीं समझते हैं, देखिए तभी तो ये जो निपुण भारत की जो मैं बात अभी कर रहा था, जो क्लास 3 तक के बच्चों के लिए पढ़ना और संख्या ज्ञान दोनों को एक साथ जोड़ा गया है। हाँ जी। पढ़ेगा नहीं तो समझेगा कैसे? हाँ जी। तो यहाँ पर यही चीज है, कक्षा 3 तक बच्चे को पढ़ना सिखाया जा रहा है, और कक्षा 3 के बाद पढ़कर समझना, पहले समझना और बाद में पढ़कर समझना, ये होनी बहुत जरूरी है। इसी निपुण भारत की बात जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतने जोर शोर से कर रही है सभी जगहों पर। ये लैंग्वेज को समझना, पढ़ना, ये शायद बहुत महत्वपूर्ण है। तो मेरे को मतलब बहुत लगा ऐसे कि क्या बात थी, या तो मैंने कुछ नहीं बताया, बच्चे ने उसको किस ढंग से लिया, तो बच्चा उसको किस ढंग से लेता है, उस चीज में मैं बहुत सोचा। फिर मैंने आपसे ये बात सबसे पैनलिस्ट से डिस्कस करी। हाँ जी। एक चीज और भी है, जिससे हम बहुत समय पहले इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करते थे और हिंदी टू इंग्लिश करते थे। हाँ जी, बिल्कुल मैम। हाँ जी, हमको समझ आता था चीज का। हाँ जी, हाँ जी। अब क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे को यदि प्रॉब्लम से क्वेश्चन तक पहुंचना, तो कभी वो रिवर्स डायरेक्शन में भी सोच के देखे तो शायद वो ज्यादा सोच पाएगा दोनों तरीके से। जैसे आपके में सॉल्व था, अब 2 इक्वेशन थी, तो उसको समझ में आना चाहिए था कि क्या कॉमन चीज है इन दोनों में। हाँ जी, हाँ जी। वो नहीं समझ पाया, उसने उसका ग्राफ अलग बनाया, उसका अलग बनाया। कह रहे हैं कि वो मैथ्स की लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा, कम्युनिकेशन गैप जो हो रहा है उसको।
हाँ जी, हाँ जी, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, प्रतीत ऐसा ही हाँ है। जी, और एक और चीज है सर, हम लोग शुरू से ही मतलब ये कॉमन एक टॉपिक है, हम जब भी कोई टीचर ट्रेनिंग होती है चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, हाँ जी, जो मैथमेटिक्स का जो नेचर है, हाँ ये जी, भी पढ़ा होगा, मैथमेटिक्स का नेचर जो है वो एक क्रमबद्ध है, मतलब हाँ एक जी, जो कंसेप्ट है वो दूसरे कंसेप्ट से जुड़ा हुआ है। हाँ जी, अभी मैडम ने कहा कि जो गुणा को हम लोग कहते हैं बारंबार जोड़ना, एक हद तक हाँ ये, जी, लेकिन एक कहीं ना कहीं इसका काउंटर एग्जांपल मिल जाता है हमको। हाँ जी, लेकिन ये भी सही है कि अगर आपको भिन्न अगर समझ में नहीं आया, फ्रैक्शन समझ में नहीं आया है, तो डेफिनेटली जो है आप परसेंट नहीं समझ पाएंगे, हाँ जी, आप डेसिमल नहीं समझ पाएंगे, और आप अगर डेसिमल नहीं समझेंगे तो आगे हाँ जी, चीजें जो है आपकी बिगड़ती चली जाएंगी। हाँ जी, हाँ और जी, रेशो नहीं समझ पाएंगे। सर एक कुछ प्लेस बिल्कुल। वैल्यू नहीं समझते हाँ, सर, तो जो ये प्लेस वैल्यू नहीं समझते, इसलिए बहुत जगह पे जब वो एडिशन कर रहे हैं वो जिग मोशन में चलते हैं, होता और है, इसलिए होता है। अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट जब वो करते हैं वो चीजें उनकी कमजोर रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वहां जहां भी उनको रीग्रुपिंग करने की बात रीग्रुपिंग वो करनी, नहीं कर पाते हैं वो रीग्रुपिंग का बच्चे लोग। आइडिया सर नहीं है, हाँ इसीलिए उनको बिल्कुल। इतना टाइम लगता है। हम्म, अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली एनसीआर में थी, तो वहां पर जनरली जो मुझे बिल मिलता था वो सब कंप्यूटराइज्ड होते थे, बट नाउ आई शिफ्टेड टू महाराष्ट्र, और यहाँ पर मुझे जो भी बिल मिल रहा है जनरली, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट आसपास के जो सब्जी वाला वेंडर्स दे रहे हैं, वो मुझे हाथ का बिल दे रहे हैं, और इट्स सरप्राइज फॉर मी, वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन करके दे रहे हैं। अभी भी आज के टाइम में भी वो सब कंप्यूटर से नहीं कर रहे हैं, वो हाथ से ही कर रहे हैं। जब मैंने एक सब्जी वाले वेंडर से पूछा कि आपका ये राइटिंग मुझे क्लियर नहीं हो रहा, आपने क्या लिखा, तो मुझे हैरानी, उसने कहा मैं कक्षा 5 पास हूं, लेकिन कक्षा 5 पास वाला इतनी जल्दी टोटल करके मुझे दे रहा है आज की डेट में भी, जो कि हमारा 12th का बच्चा नहीं कर सकता। जी, तो वो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ग्रुपिंग कर रहा है, या जो भी उसके माइंड में सेट है, तो इस पे भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो नहीं कि पूरा भारत इतना ज्यादा हो गया कि वो उसको सबको कंप्यूटर से ही कर पाएगा। हाँ जी मैम, वो बात भी ठीक है, चीजों और का बेसिक्स भी हमें करने पड़े हैं। अब मैम भी कुछ होना टाइम चाहिए, मेंटल कुछ मार्क्स टाइम पहले, हाँ जी मैम, कुछ टाइम पहले बच्चे को इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम दिया, dx अपॉन x प्लस 1, बच्चा बड़े आराम से लिख रहा है dx अपॉन x प्लस dx अपॉन 1, तो बच्चे को यह चीज नहीं पता कि रैशनलाइज या उसको कैसे आगे सॉल्व करेंगे। वो 1 अपॉन 2 प्लस 3 को आराम से लिख रहा है 1/2 प्लस 1/3। तो ये सब बातें अगर हमने स्टार्टिंग से ही बच्चे को अच्छे वे से, अच्छे ढंग से समझाएं, तो आगे जाकर वो उस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा मेरे हिसाब से। तो सर अच्छे स्तर पे बच्चे लोग जो एक फ्रैक्शन जो होता है जिसको हम लोग न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो अलग अलग रूप में देखते हैं कि ऊपर अलग कोई संख्या लिखी है, नीचे अलग संख्या लिखी है। फ्रैक्शन एक नंबर है, उसको उस रूप में देख ही नहीं पाते हैं, नहीं देख पाते। ऐसा नहीं होता है सर। दिक्कत सबसे ज्यादा बात है कि जो डिलीवरी होती है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती। हाँ जी, इसलिए ये बहुत बड़ी एक समस्या होती है, और ये सारी चीजें कैरी फॉरवर्ड होती हैं, और यही आगे जाकर हाँ जी दिक्कत देती है बच्चों को, बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। हाँ जी। सर थोड़ा आपसे व्यूज जान सकता हूँ, आपसे मीनाक्षी मैम से, कंप्यूटर से हम कैसे मैथ्स और अच्छा करवा सकते हैं? कंप्यूटिंग के थ्रू? हाँ जी सर फिर उसके लिए तो हमें जैसे अब आगे के उससे लेना है, तो हमें नेचुरली अभी जैसे अपने डाल दिया है हम लोगों ने बाइनरी सिस्टम वगैरह, वो सब भी कराना पड़ेगा सर, करवाना पड़ेगा। और मैम बूलियन अलजेब्रा बहुत अच्छा 11th में पढ़ा रहे हैं, क्लास 11th में, व्हाई नॉट इन अर्ली क्लासेस, अर्ली क्लासेस, राइट मैम, में भी पढ़ा देंगे, तब भी आपको समझ आ जाएगा बच्चे को। मुझे नहीं लगता कि क्लास सेट पढ़ाने के लिए बहुत देर में। और मैम स्टार्टिंग से मैथमेटिकल कैलकुलेटर्स बहुत आ रहे हैं आजकल नेट पे, चाहे जैसे कैलकुलेशन, एडिशन हुए, सब्ट्रैक्शन हुए, कॉमर्शियल मैथ्स के फॉर्मूलाज हुए, मेंसुरेशन के, तो हम एज ए एक्स्ट्रा प्रैक्टिस उनको वो भी करवा सकते हैं। बच्चा अपने आप सॉल्व करके उसके आंसर निकल के वो खुद जज कर सकता है कि कहाँ मेरी मिस्टेक है, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, और कहाँ मैं आगे उसको और अच्छा इंप्रूव कर सकता हूँ। और ये फाइनेंशियल मार्क्स तो वैसे
जनरली हम यदि स्ट्रीम्स की बात ना करें हाँ अभी, जी, तो हमारे हाँ जो जी, आगे बच्चे जाते हैं उनको जरूरत तो पड़ती है फाइनेंशियल जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट बल्कि मैम आर्किटेक्चर, एक्चुरियल साइंस और जैसे अब मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी में भी अब बच्चे सोचने लग गए हैं, तो उन चीजों में इन सब की बहुत वाइड एप्लीकेशंस हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मैथ्स की हम एप्लीकेशंस उनको पॉइंट पॉइंट पे बता सकते हैं। जैसे हम मैट्रिसेस करते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैट्रिसेस में पूरी एक वीडियो है, मैट्रिसेस एंड क्रिप्टोग्राफी में हम मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके इनवर्स से ही कोड जनरेट होकर वो चीज कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्लियर होते हैं। तो मैम ऐसी हम बहुत सी चीजें हैं, हम उनको बता सकते हैं इंटरेस्ट के लिए, और उनके प्रॉपर उससे पहले वो जो प्रॉपरली उस कॉन्सेप्ट को समझ सके वो बहुत जरूरी है। सो थ्रू मल्टीमीडिया और थ्रू लेवल कंप्यूटर्स, पे बात कर रहे हैं ना, पहले तो हमें जो उनका रूट लेवल है वहां पर ही लाना पड़ेगा, जिससे कि बच्चे में इंटरेस्ट, तो आज का बच्चा तो जनरली डेविड वो तो भागना चाहता है मैथ से, एक सर्टेन एज के बाद उसे आके लगता है कि सबसे टफ सब्जेक्ट ये है। और ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो एंजॉय करते हैं, तो कहीं ना कहीं तो डिफरेंस हुआ ना उनको टीचिंग में। हाँ जी, तो एक जो हमें चीज लानी पड़ेगी कि मैथमेटिकल कम्युनिकेशन पर जोर देना, कि आपको जो मैथमेटिक्स समझ में आया है उसको आप दूसरे लोगों से कैसे कम्युनिकेट करेंगे। हाँ जी, क्योंकि अब जमाना आ गया है टीम में काम करने का, वो जमाना चला गया कि एक अकेला बंदा लगा हुआ है और वो कर रहा है सब काम। अब तो टीम है, टीम के साथ आपको काम करना है, और आपके पास अगर मैथमेटिकल आइडिया है तो पूरी टीम को कम्युनिकेट करना है। वो कैसे करेंगे, कैसे समझाएंगे पूरी टीम को कि सबको समझ में आ जाए कि क्या करना है, वगैरह वगैरह। तो हम अभी क्या है कि बच्चों से ये नहीं पूछते भाई ये तुमने कैसे प्रॉब्लम सॉल्व की, प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, ओह वेरी गुड, बस बात खत्म। मगर कैसे की, क्या कोई और तरीका हो सकता था, पूरी क्लास में इस प्रॉब्लम को किसी और तरीके से हल किया है किसी ने, वगैरह वगैरह, इन चीजों पर तो हम जोर ही नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है ये सब कहीं करिकुलम का हिस्सा बनने की जरूरत है, कम्युनिकेशन के ऊपर एम्फेसिस बदलने की जरूरत है, कहीं है। धर्मप्रकाश सर, मैं आपसे एक सेमिनार में मिला था, तो मैंने एक क्वेश्चन क्लास में पुट किया था कि 0.1 का स्क्वायर रूट 0.3162 है। अब बच्चा पूछता है सर स्क्वायर रूट उस नंबर से ज्यादा कैसे हुआ, तो मैंने बताया वो नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में ये प्रॉपर्टी होती है कि जिस नंबर का हम स्क्वायर रूट लेंगे वो नंबर उससे ज्यादा होगा। तो मेरे हिसाब से अगर हम बच्चे को इस ढंग से भी हर चीज को बताएं या प्रैक्टिस करवाएं तो उसका बहुत माइंड क्लियर हो सकता है मैथमेटिक्स में। मैंने सेमिनार में किया था और आप बिल्कुल नहीं, आप इस चीज को अप्रिशिएट किया था। नहीं, वो कोशिश करना पड़ेगा ना कि ये फ्रैक्शन है तो यहाँ पे नॉर्मल रूल नेचुरल नंबर के अप्लाई नहीं होते। हाँ जी, कुछ आप बात कर रहे थे ना कि टीम वर्क की, तो ये मैंने अभी पीछे टीचिंग में ही अपना एक एक्सपेरिमेंट ही कहूंगी, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया क्लास 11th को, क्योंकि ये ऑनलाइन जब चल रहा था तो समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चे कितना इनका आंसर अपना है, कितना गूगल देवता ने इनको हेल्प की है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपनी एक टीम बना के, और आपको जो भी चैप्टर अब तक हमने जो जो पढ़ाया है, चाहे चैप्टर का कोई पार्ट यूनिटी ले लीजिए, आप जो भी इस आप जिसमें जितना समझ सके हैं और आप अपने तरीके से प्रेजेंट करेंगे टीम में, 3-4 बच्चे मिलके जितना भी करना। और एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट था क्योंकि उसमें बच्चे अपने अपने तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो वो ये तो मैडम ये तो एक लॉजिकल थिंकिंग डेवलप करने का बहुत अच्छा तरीका है। जी। और जैसे अभी धर्म सर भी कह रहे थे कि वो जो अगर ये कॉमन प्रैक्टिस है जो बच्चों के साथ पैटर्न्स के साथ में करते हैं, आपने अगर एक पैटर्न दिया है और अगर आपने उनको एक्सप्लेन किया, बाद में अगर आप उनको कोई दूसरा पैटर्न देते हैं और बच्चों से कहते हैं कि इसको एक्सप्लेन करो और या उस पैटर्न को आगे बढ़ाओ या उसी के जैसे आप खुद एक पैटर्न बना दो, तो ये कॉमन तरीके हैं बच्चों के साथ में उनके लॉजिकल को डेवलप करने का। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है जो नहीं मुझे, और इसमें सर जब मैंने किया ये काम तो मैंने उनको क्या किया, इंटरनल असेसमेंट के नाम पर कि मैं इंटरनल असेसमेंट इसी के बेस पे दूंगी। मैंने अपना इनिशिएटिव लेके कि ठीक है ये मेरे मार्क्स हैं, इंटरनल होमवर्क एग्जामिनेशन है और मैं इस पे मार्क्स दूंगी 10 के।
तो अब वही सर है, वहां पे गलती तो है कि हम फिर क्रिएटिव थिंकिंग को मार्किंग कर रहे हैं, बट हमें क्योंकि मार्क्स वहां देने हैं टोटल में, बट नहीं बच्चों मैडम, नंबर देके साथ में ये भी लिख देना कि इस बच्चे में क्रिएटिव थिंकिंग का ये लेवल है, वो ये कर पा रहा है, क्रिएटिव थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स सोच पाता है, कई सारे अल्टरनेट तरीके सोच पाता है। अगर ये भी लिख दें तो पेरेंट्स को भी एक गाइडेंस मिलेगी। सर वही मैं आपसे बच्चे को बता भी रही हूँ, guidance। उसमें बच्चों ने, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक बच्चे ने मतलब मेरे उससे इतना अलग था, उसने एक जंगल बुक बनाई उसके लिए प्रेजेंट करने के लिए। उस जंगल बुक पे उस बच्चे ने डिफरेंट कैरेक्टर्स के थ्रू उसने स्टार्ट किया ट्रिग्नोमेट्री से, और उसने दिखाया कि मंकी कैसे जंप करके गया और स्नेक कैसे गया लेटर से। बच्चे की इमेजिनेशन में उसने जिस तरीके से, अब उसके पास क्योंकि वो कंप्यूटर साइंसेस का बच्चा था तो उसके पास स्किल्स थी, फिर उसने उस पे जाके मतलब एट लास्ट उसने वहां से प्रोबेबिलिटी तक निकाली। तो हम जब बच्चों को ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि हो सकता है मुझे, मेरे लिए सीखना था उससे, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जरूरी नहीं है कि वो चीज मुझे भी आती हो। आज का बच्चा हमसे काफी आगे निकल चुका है कहीं, तो इस चीज को एक्सेप्ट करते हुए थोड़ा सा हमको उनको ओपन रखना पड़ेगा। हम हर चीज को, क्योंकि मार्क्स और सिलेबस फिनिशिंग पे हमारा फोकस हो जाता है ड्यू टू जो भी हमारा सिस्टम है, स्ट्रक्चर है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वो असेसमेंट ही बदलनी पड़ेगी कि असेसमेंट मार्क्स की जगह हमें ये कहना भाई इस बच्चे को ये तो आता है, ये और सीखना है, ये और सीखने के, यही सर कहना चाह रही थी। जी, और किसी को कुछ कहना हो तो शायद संजय सर आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम बस अब जो था सब कह तो दिया, बाकी अब यही है कि भाई इस हिसाब से अगर हम प्रैक्टिस करते रहे तो डेफिनेटली हमें ऐसा लगेगा कि हाँ हमने मैथमेटिक्स बच्चों को पढ़ाकर मतलब खुद भी अच्छा अचीव किया, बच्चे ने भी काफी अच्छा अचीव किया। इसमें सर वो स्टेज आनी चाहिए ना, बच्चा 2 क्वेश्चन भी अपने आप करके सोया, आप बना ले, बिल्कुल सोच पाया, क्वेश्चन भी हाँ जी। सोच कर वो इतना थक गया अपने आप करके कि उसे चैन की नींद आई। हाँ जी मैम, यही है, थ्रू असाइनमेंट्स ये बहुत हो सकता है। थ्रू असाइनमेंट्स अगर हम बच्चे को टॉपिक अच्छी तरह समझाकर असाइनमेंट की पूरी प्रैक्टिस दें तो ये बहुत हो सकता है। अब जैसे मैम 12th में क्लास लेकर मैं बच्चों को असाइनमेंट जरूर देता हूँ, उनकी असाइनमेंट लेकर आई टेक अप द राउंड्स टू क्लैरिफाई द डाउट्स एंड आंसर्स, तो उससे बच्चा एक बहुत अच्छे ढंग से सीख सकता है। और नहीं मगर सर वो उस असाइनमेंट को एक अगले लेवल पे ले जाने की जरूरत है कि हमें ये बताने की जरूरत है बच्चे को, उसको असेस करके कि ये स्किल्स तो तुम्हें आ गई हैं, इन स्किल्स में और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। सर तो उसमें हम हमारी असाइनमेंट ये बता रही है कि यू आर ए क्रिटिकल थिंकर, मगर आपको अभी मैथमेटिकल थिंकिंग और थोड़ी सी सीखनी है। ये जब तक हम असेसमेंट को इस लेवल पे नहीं लाएंगे तब तक इन प्रोजेक्ट्स का फायदा नहीं होने वाला बहुत। हाँ जी, वो सिर्फ वो नंबर में ही उलझ जाएंगे। सर प्रोजेक्ट्स तो खैर ऑलरेडी हैं अब सिलेबस में, 11th 12th में मैथ्स प्रैक्टिकल में बच्चे, नहीं हमें उनकी असेसमेंट को भी इम्प्रूव करना है। हाँ जी तो सर प्रोजेक्ट्स जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेते हैं तो थ्रू वाइवा और उनके मॉडल्स पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके, रिकॉर्ड बुक पे उनको बहुत ज्यादा एम्फेसिस करके बहुत उस लाइन में इम्प्रूवमेंट आ रही है। मतलब बच्चे बहुत प्रैक्टिकली भी मैथ्स को सोच रहे हैं, मॉडल बनाना, वाइवा देखना और अपने रिकॉर्ड बुक्स मेंटेन करना बहुत अच्छा कर रहे हैं सर कई बच्चे। सर यदि प्रैक्टिकल को समझ लिया बच्चे ने और विजुअलाइज करना शुरू कर दिया, हाँ जी, तो बात ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। आप ये देखिए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ाना कितना आसान हो सकता है कि यदि बच्चा उस चीज को विजुअलाइज कर ले। अब मैम जैसे स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस जब तक हम उसको एक्चुअल नहीं समझाएंगे वो समझेगा नहीं कि लाइंस होती क्या है। पहले तो उसको प्लेन्स का समझ भी, तो ऑक्टेंट भी तो समझ आना चाहिए ना। हाँ जी बिल्कुल, वो चीजें वो ये भी तो समझ पाए कि 3 है तो क्यों इतना। अब उसने एक जगह पढ़ा है चीजों को, जैसे सर ने बोला था कि a+b का होल क्यूब पढ़ा हुआ है, क्यूबॉइड पढ़ा है, उसके बाद वो उस तरीके से क्यों नहीं विजुअलाइज कर पाया कि मैंने क्यूबॉइड पढ़ा था, उसकी फेसेस आई। इन सब चीजों को वो प्री नॉलेज को जब ज्वाइन कर पाएगा तभी तो बेनिफिट है। हाँ जी मैम, अब जैसे स्क्यू लाइंस का एक एग्जांपल होता है, एक कोई रनवे है और एक कोई और
कोई है मींस रेलवे लाइंस हैं, उसमें अलग अलग लाइंस क्यू लाइंस हैं, तो इस हिसाब से समझकर बच्चा बहुत अलग वे में मैथ्स को सोचकर समझ के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब जैसे स्क्यू लाइंस हो गई और 3 डायमेंशनल में एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स हैं, वो तो कह रहा टॉपिक नहीं है, बट थ्रू नॉर्मल और कंस्ट्रक्शन करके उसको भी बहुत अच्छी तरह समझाया जा सकता है। धर्म सर, डॉक्टर धर्म, ये इसमें सर जो एनसीएफ के अंदर जो बात होगी या जो पोजीशन पेपर में जो बात होगी, उसमें मुझे लगता है स्टेट्स के लिए एक चीज रिकमेंड की जा सकती है सर, कि जो ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स होता है उसके साथ हमारे जो एक नॉर्मल जो हमारा मैथमेटिक्स है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उसका कुछ कनेक्शन बच्चों को जो है वो देख पाए। खासकर सर अभी तो असल में हम एजुकेशन पॉलिसी की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा कि उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं छिपी हुई हैं संजय जी। जी जी, जैसे कि उन्होंने ये कहा है 3 से 6 साल तक के बच्चे फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में आ गए, है ना जी। अब करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जो जुड़ गए, और जी, पहले जितने थे 15 करोड़ वो तो थे ही थे, जी, ये 10 करोड़ बच्चे और जुड़ गए। जी। और उनको पढ़ाने वाले कौन है? आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी के, हाँ, जो कि 5वीं पास है, जिनको खुद समझ नहीं है, जी, जी, जिनको पेडागोजी की समझ नहीं है, वो सब पढ़ाएंगे उनको। जी, 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 हाँ। तो उनको अगर हम ट्रेनिंग भी शुरू करेंगे लाखों लोगों की, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? उनके लिए किताबें कहाँ हैं बच्चों के? नहीं सर, मैं वो बहुत सारी चीजें हैं उस सर, चीज की बच्चों बात के नहीं लिए कर तो रहा हूँ। किताबें एनसीईआरटी ने भी नहीं लिखी हैं। नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ सर, ये तो स्टेट को करना होगा ना सर, ये तो नहीं, वो कहेंगे जी हमें मॉडल बुक, तो वो तो एनसीईआरटी लिखेगा ना, नहीं सर, फिर स्टेट उसकी मैं जैसी और बुक्स बनाएगा। आंगनबाड़ी के उसकी बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि जो कम्युनिटीज आज भी गणित का यूज करती हैं सर, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं सर मैं आपको, हम लोग जब मेजरमेंट की बात करते हैं, हम लोग 1 लीटर की बात करते हैं या हम केजी की बात करते हैं, की बात करते हैं, लेकिन आज भी अगर आप गांव में चले जाएं तो वहां पर उनके अपने ट्रेडिशनल मेथड्स हैं मेजरमेंट के। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है सर, कोई पाइली यूज करता है कोई गांव में, कोई मान कहता है, कोई तामी कहता है, तो इनका अपने जो स्टैंडर्ड जो यूनिट्स हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। का मतलब होता है 1 केजी होता है, या एक मान का मतलब 3 केजी होता है। तो इस तरीके के जो कनेक्शंस होते हैं सर, ये बच्चों को इस तरीके से ये मोटिवेट कर सकते हैं कि जो वो यूज कर रहे हैं वो कोई खराब चीज नहीं है, वो भी हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई चीज है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये इस टाइप के कनेक्शंस मैंने बल्कि एक ट्राइबल विलेज में विजिट किया था वहां पर वो 20 यूज करते थे, 20 तक की गिनती, 10 के। तो वो उन बच्चों को हमारा गणित पढ़ाने में बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि हमारा गणित 10 को स्थानीय मान रहा है, और वहां वो 20 से करते हैं। बिल्कुल, हम लोगों ने धुरवा के ऊपर में मैंने काम किया है सर, धुरवा ट्रेडिशनल जो ट्राइबल के ऊपर हम लोगों ने उसके प्राइमर्स बनाए हैं लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के, वो आज भी 20 सिस्टम को फॉलो करते हैं, आज 20 सिस्टम पे करते हैं, लेकिन हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो 10 को फॉलो करने वाली होती है, इनके पास वही जाते हैं। तो ये है सर यूनिफॉर्म, मतलब लाइक ये जो आप सिस्टम पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, वो हमारे दूसरे बच्चों को भी पता होना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है, जरूरी तो नहीं है कि वो बच्चा जिस सिस्टम में पढ़कर आ रहा है वहीं पर वो काम कर रहा है, या पूरे ऑल ओवर इंडिया उसको पता तो होना चाहिए ना ये चीज भी चल रही है। वो तो बुक्स में उसके इक्विवेलेंट दोनों चीजों को होना चाहिए, तब बेनिफिट हो पाएगा बच्चे को। सही बात, सही कह रहे हैं। किस चीज का मैडम ने, मतलब जो ट्रेडिशनल चीजें हैं उसकी चीज की बात कर रहे हैं? सर मैं कह रही हूँ, जैसे आपने ट्रेडिशनल चीज करी, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अब जैसे मुझे ही इस समय बड़ा अफसोस हो रहा है कि आप जो सिस्टम बात कर रहे हैं वो मुझे नहीं पता पूरा, कुछ ज्ञान है कुछ नहीं है, ठीक है। तो यदि आपका वाला जो सिस्टम था वो हमारी बुक्स में वो भी आता, क्योंकि हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो हमारे गांव जो है हमारा अभिन्न अंग है ना,
तो उसका उस वहां जो हम पढ़ा रहे हैं वो एक शहरी बच्चे को भी तो पता होना चाहिए। नहीं, आप मैडम देखिए, हम लोग ने कोई, जैसे मैंने जो काम किया, जी मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि हमने उनके सिस्टम को स्टैंडर्ड बना दिया, उनके सिस्टम को अपने स्टैंडर्ड सिस्टम से कनेक्ट किया। और ये जो सिस्टम की जो बात कह रहा हूं मैं, ऐसे तो आप जैसे छत्तीसगढ़ है, अब छत्तीसगढ़ के अंदर में 42 ट्राइबल जो है जनजातियां हैं। जी। अब आप अगर उन ट्राइबल जनजातियों के अगर एनालिसिस करने जाएंगे तो हर का आपको अलग अलग सिस्टम मिलेगा, लेकिन उनको यूज करते हुए हम उनको स्टैंडर्ड की तरफ लाने की बात कर रहे हैं, या जैसे हम लोग उनकी लैंग्वेज को यूज करते हुए उनको हिंदी सिखाने की बात करते हैं जी। तो उनको तो सीधा सीधा हिंदी की किताबें दे रहे हैं सरकार की तरफ से, जी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हिंदी है, लेकिन उनकी जो होम लैंग्वेज है वो अलग है। जी। कि होम लैंग्वेज को यूज करते हुए उनको हिंदी सिखाना है, अंग्रेजी सिखाना है, ताकि जिसको हम लोग मेन स्ट्रीम कहते हैं वो आ जाए उसमें। बिल्कुल। अब वही चीज जो है उसके साथ भी कर रहे हैं, गणित के साथ में भी, कि भाई जो चीज वो जानते हैं वो चीज को समझते हुए उनको हमको मेन स्ट्रीमिंग पे लेके आना। नहीं, मेरा मतलब ये था सर यहाँ पर, जी जैसे मैडम, आप जी वो मैडम। सिस्टम यूज कर रहे हैं, हम जैसे पुस्तक में जो बुक बन रही है एनसीईआरटी जी की, मैडम, उसमें वो जी। 2 लाइनों में कहीं कुछ इस तरीके हाँ, से इंडिकेशन हो जिससे दूसरे आपको आज भी हैरानी होगी, मतलब मुझे आपको ये बताने मतलब शर्म भी महसूस होती है कि हमारा बच्चा 76 जानता है, जी जी बिल्कुल, लेकिन यदि उसे 76 बोल दिया जाए तो वो बिल्कुल। सोचना शुरू कर देता है। ठीक बोल पूछा रहे जाए कि बस नंबर 76 कहाँ है, जी, तो वो बता देगा, बस नंबर 76 नहीं पता उसको। नहीं पता। तो इसी तरीके से ठीक कह रहे हैं। ये मैं कहती हूँ मुझे शर्म आती है, लेकिन अभी जब आपने बताया कि आप उस सिस्टम के बारे में कर रहे थे तो मुझे खुद को शर्म आई कि मुझे उस चीज के विषय में नहीं पता। हाँ, मतलब ये है कि इस थोड़ा टाइप सा की कम से चीजें कम कुछ बॉक्स ऐसी आइटम्स के चीजें फॉर्म में, तो पता यस तो यस। हो। हाँ, हमारे इस टाइप के जो सिस्टम्स को बॉक्स आइटम के फॉर्म में अपनी जो ये करिकुलम फ्रेमवर्क बनेगा या जो उसकी किताबें बनेंगी उसमें कहीं ना कहीं मेंशन हो जाना। जैसे सर आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, हमारे बच्चों को ये पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर, उन्हें ये नहीं पता कि ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। आप पूछ लीजिए क्लास में, अब हम अपने मैथमेटिशियन को नहीं जानते, हम पूरा साल पढ़ते हैं ये पास्कल्स है ये, तो जो कहीं हमारे बीच जो चीजें उनको भी तो हमें कहीं जोड़ के रखना पड़ेगा। मैम अब तो एनसीईआरटी में ये होना चाहिए कि हर टॉपिक के बाद एक मैथमेटिशियन, जैसे अब 11th एनसीईआरटी में देखो उसमें इंट्रोड्यूस हुआ है, हर टॉपिक में एक मैथमेटिशियन का नाम लिखा हुआ है और ये सब भी बताया गया है कि इस मैथमेटिशियन ने ये सब करा। और मीनाक्षी मैम आपसे मैं एक बात और पूछना चाहूंगा, कभी कोई जैसे कोई मैथमेटिक्स में नंबर होता है 59, अब 59 को हिंदी में सोचूं तो मैं खुद से उसमें पड़ जाऊंगा 59 को हिंदी में क्या कहते हैं। तो मैम ये चीज है, अभी कई और टीचर्स भी सोचते रहते हैं कि हम इस चीज को कैसे डेवलप करें। नहीं सर, ये तो मतलब मुझे इस बात में बहुत मतलब तकलीफ होती है इस चीज से, क्योंकि हम ये तो नहीं है कि हम अब हमेशा उन सिटीज में रहेंगे या उन्हीं लोगों से मिलेंगे। मैंने आपको एग्जांपल बताया कि ये तो चीज पता होनी चाहिए, मतलब नहीं ये सब होता है कि टीचर किस तरह से अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। जी, तो अगर टीचर बात बात में दोनों भाषाएं यूज कर रहा है तो बच्चे भी दोनों भाषाएं यूज करेंगे। जी। और अगर टीचर सिर्फ अंग्रेजी यूज कर रहा है तो बच्चे भी अंग्रेजी यूज करेंगे। समस्या तो ये, अगर मतलब दोनों भाषाएं अध्यापक भी इस्तेमाल करता है बार बार, कभी वो 46 भी कहता है और 56 भी कहता है, तो बच्चा हैंडल करना सीख जाएगा। मगर अगर वो कई स्कूलों में मैं जब विजिट किया है तो मैंने नोट किया है कि वहाँ अंग्रेजी के सिवाय दूसरी भाषा का प्रयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो ये समस्या तो है ही है। ये तो सर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। मेरे हिसाब से सर अगर हमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाएं, जैसे हमें रिस्ट्रिक्शन कभी कई स्कूल्स में होती है कि आपको इंग्लिश में ही पढ़ाना है, तो अगर हम इंग्लिश और हिंदी का दोनों का सहारा लेकर इन चीजों को बताएं तो मेरे हिसाब से बच्चा काफी उस चीज को समझ पाएगा और एनालाइज भी कर लेगा। हाँ, ये तो है, ये तो है सर। वो तो आधे बच्चों की समस्या यही है
कि हाँ उनको जी, मैं आपको आप देखते होंगे जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, बेस हाँ थ्योरम जी, हाँ पढ़ाते हैं, जी, आधे बच्चों को क्वेश्चन इसीलिए तो नहीं समझ आता, नहीं समझ में आते। हाँ जी, लैंग्वेज नहीं समझ आ रही ना। तो नहीं, अभी भी बहुत काफी सारे बच्चे हिंदी में ही सोचते हैं, जी अंग्रेजी में बहुत कम सोचते हैं। जी हाँ जी, अभी तो हम हिंदी और अंग्रेजी की तरह जैसे सर ने बताई समझे नहीं? सोचने अब वो सोचने जो की सोचने जो की भाषा तो सर हो ही नहीं सकती अंग्रेजी के, चाहे वो कितने बड़े अंग्रेजी हाँ, स्कूल में पढ़ता हो। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो तो सोचने इसलिए की भाषा तो हिंदी है। हाँ, तो वो जो कारण ये है कि अब हम उसको रोक देते हैं कि सोच तो तू हिंदी में, और बोल लिख तू अंग्रेजी में। हाँ जी, तो वो गरीब फंस गया बीच में। जी हाँ जी, हाँ जी। अब सर इवन प्रोबेबिलिटी में इक्वल लाइकली इवेंट्स, बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते कि इक्वल लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं। वो भी बच्चों को बताना पड़ता है कि इक्वल लाइकली इवेंट्स क्या होते हैं, क्या चीजें आइडेंटिकल होती हैं, क्या चीज आइडेंटिकल नहीं होती। वो भी बच्चे को बताना पड़ता है, तब जाकर उसको प्रोबेबिलिटी समझ में आती। नहीं तो सर प्रोबेबिलिटी तो ऐसा रफ टॉपिक बन गया है 12th के लिए